Today's topic is on how to select the right topic for research. So, if you guys remember, yesterday I talked about what is legal writing, what is research, and how you should do what is the basics of research. So, we talked about the differences between the legal article, research paper, blogs, right? So, today's topic would be basically that we know how to do a research, but then how will you start by selecting a right topic? So that is the most core and the most important thing. Okay, so okay, there are more people joining in. One second. Right. Okay, so this is the first slide of my presentation, which talks about the preliminary points. So, how do you start a research? So, here the first, I would request everybody to mute themselves. Yeah, thank you. So, the first point here is that research precedes writing. So basically, what does this mean? Can anybody tell me what do you mean by research precedes writing? What do you mean by that? Can somebody answer? What do you mean by research precedes writing? May I? Yes, sure. Before So it is that before writing, we have to do our homework well. We have to have all the information or concepts clear with research, and that is how we have the structure ready with us, and that is going to help us when we start working on the topic. Yes, good. Uh, Kritika, okay, my presentation is not visible. Can everybody see my presentation? Ma'am, yes, it's please visible. request this Albert John to mute himself. Yes. Albert John, can you please mute yourself? Excuse Albert John. Thank you. Okay, so yes, Aparna said it rightly that research precedes writing this is very normal common sense that you have to do your homework properly, you have to do your research properly before going into the main writing. So you have to know about the topic, you have to know your facts, you have to properly analyze as to as to how how long will your topic be, what will your introduction be, how many words are you going to write. So these all things are very important. So the basic in this research precedes writing is that you have to understand your law. Now as a law student, we are going to write any article, research paper, blog, or dissertation, thesis. Anything that we're going to write will be on a law legal topic, right? So for that we need to get our concepts cleared, our understanding of the law has to be cleared. Whatever principles that we are going to use in our research, that has to be clear. What are the important legal principles that we are going to do, then the case laws associated to it. So before obviously before writing we have to do the research, and for the research, like I said yesterday, we have to thoroughly deeply research. Now if you are taking any topic, you have to first know the facts, you have to know the law. Like for example, if I'm going to write a paper on rape law, so I have to know which section talks about rape. 375 section of IPC talks about rape, right? So I have to first know that which section talks about it, and then what are the subsections there, what does the law say, what are the case laws, what are the landmark cases, and if there is some recent cases that are going on, you have to know that. So basically the overall picture relating to your topic is very important. So before you start writing, you have to be, can you please mute yourself?
This is the last time I'm saying. ओए मान जाओ उठा, मान जाओ उठा। Guys, I'm repeating. I have removed Albert John from the call. If nobody's interested, please leave the call. You can, but don't interrupt like this. Okay. So I was saying about research precedes writing. So basically, it is very important to research, right? So basic thing is your understanding of the law, your facts, your case laws, whatever the landmark cases is or the relevant cases. That is very important before you start the writing. So you have to deeply research, and any topic that you will that any topic that you want to research on, your understanding of the law is the most crucial thing. That is why I'm repeating again and again about understanding of the law, because if our legal concepts are not clear, if our legal principles are not clear, right, then we will not write a good paper. And like yesterday also in my previous session, I told you that mere copy pasting will not work. If we are now, going into the legal principles and legal writing, then it is normal thing to write an original paper, right? Copy paste will not help. So that is about research precedes writing. Okay, also one more thing, is it okay if I speak in Hindi, or everybody wants me to speak in English? Because as per the feedback that I've got, there were a lot of people who said that they needed bilingual language. So is English fine, or should I? It will be great. It will be great if you mix both languages. Okay, sure. Thank you. I don't have English. Sorry. English should be fine, madam. A little bit of Hindi is okay. Okay, sure. Thank you. Thanks. Okay, so next we are going on the next basic, that is understand the law. As I said before, also the understanding of your law is very important, right? Your principles, your legal principles, your facts, your basics, sub kuch, everything is very important. Okay, so in this, basically, a good way to start your research is to understand the law behind a particular topic, or a whatever you want to write. So for that, you have to understand the law behind it. Now if I'm thinking about writing a, let's take an example of false cases. Okay, there has been a lot of false misuse of law, right? So like for example, rape law. So if I'm writing a paper on false criminal cases against men, right, तो ऐसा होगा कि it would be very important to know कि कौन से laws हैं. जैसे rape law है तो section 375 would talk about it. So that would be more important, that okay, I know about section 375, but then what does section 375 say? What is the bare act language? What is the layman language? What are the case laws that deal with it? Then what are the legal principles that deal with it, right? And then it is also important to know that where your topic is going, which direction you want to go. Now it is okay, let's see, everybody knows what rape law is and all, but if you're writing a paper, then you should know, if you're critically analyzing the rape laws, then you have to give criticisms, right? You have to give that why do you think that the rape law is not sufficient as per IPC. If you don't agree that the rape law has some, yes, in BNS section 64, yes, I'm yeah, in IPC it's section 375. So as per that, you need to know that what it says, what is the barak language, what is the layman language. Because see, कोई भी अगर आपका पेपर पढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लॉयर पढ़ रहा है या कोई लीगल प्रैक्टिशनर पढ़ रहा है, राइट? कोई भी पढ़ सकता है, तो उसको जैसे सब लोग नहीं पढ़ते हैं, एवरीबडी डजंट नो व्हाट 375 सेक्शन इज. तो यू हैव टू राइट योर पेपर इन सच अ वे कि इवन अ लेमैन पर्सन can read it, can know that okay, if you're writing this paper ki acha, what is rape? Okay, rape is this, right? Rape is when obviously it's fully explained in 375, but no layman will go to section 375 and see acha what is rape. वो नहीं करेगा कोई. तो you have to write a paper in such a way that a layman person also understands your content.
ओके, सो बेसिक्स है कि आपको अपना लॉ पता होना चाहिए. यू हैव टू नो बेसिकली कि पूरा लीगल प्रिंसिपल क्या क्या है, फिर क्या स्पेसिफिक्स हैं उस लॉ में, वो सब पता होना चाहिए, राइट? So that is very important. Then the next is that you dive into the specifics. As I said, general legal context is very important. So that is basically diving into the specific. It will be basically to you need to learn more about your topic. You need to research more about your topic, right? You have to go through a lot of research papers, articles, journal articles, then normal Google search, normal blog spots, नॉर्मल गूगल सर्च, नॉर्मल ब्लॉग स्पॉट्स एंड वेरियस वॉट एवर जो भी आपको मिलता है रिलेटेड टू योर टॉपिक, कुछ भी हो, अगर आप उसको पढ़ोगे डेफिनेटली आपका नॉलेज इंक्रीज होगा. देन आपका वेराइटी, आपका माइंड विल क्रिएटिवली थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. अब जैसे कि मैंने बोला रेप लॉ है, तो सिर्फ रेप में और भी बहुत सारी चीजें आती है ना, फॉल्स केसेस हैं, देन आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो. तो देन ऑब्वियसली यू विल नैरो डाउन व्हाट यू वांट टू राइट ऑन. सो ऐसे जो भी बेसिक फर्स्ट थिंग इज कि आपको देखना है कि आपका लॉ का अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में आपको लिखना है, क्या करना है, आपके फैक्ट्स, आपके प्रिंसिपल्स, ये सब बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए. आपको स्पेसिफिक्स में बेसिकली यू हैव टू लिस्ट डाउन कि डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है एंड ऑल. Okay, wait. Aman is saying we can break down the Barak language or it should be strictly Barak language only. No, see that's what I said. Na ki dekho, if you would obviously it is good to give the Barak language. Like in an introduction, you can say कि section 375 में ये बोल रहे हैं, right? And then नीचे you can explain it in a normal layman language also. You can obviously when you're giving the Barak language that you need to cite because then you'll get plagiarism. तो आप वो cite करोगे तो उसमें नीचे फुटनोट्स में यू पुट सेक्शन 375 रेप लॉ, राइट? देन उसमें जब आप मेन कंटेंट में लिख रहे हो देयर यू हैव टू गिव द नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में रेप क्या है, तो दैट यू कैन एक्सप्लेन. ओके, yes, so bare act provision plus the explanation, that is it makes the work easier. Nobody is going to go and check what is written in the bare act, right? So you have to put the bare act, but it's not कि आप पूरा provision डाल दो. You can give a normal short brief also कि वो क्या बोलता है वो section, ठीक है? Then yeah, obviously you have to give reference or credit at last. I mean this is the basics, right? Footnotes, that is why footnotes I'm emphasizing on footnotes, क्योंकि footnotes बहुत important है. कुछ भी अब जैसे मैंने section 375 की बात करी तो मैंने section 375 डाला, right? So obviously जब हम section 375 डाल रहे हैं तो we have to cite it because if you don't cite it then the plagiarism will come. So you have to cite the sections. Everything needs to be cited which you copy. See, articles, sections, case laws, any quote that you are copying, or if any article you are taking reference of any article, वो भी आपको cite करना पड़ेगा. बिना cite करे नहीं चलेगा. And like in my previous session also I told you, जितना ज़्यादा footnotes उतना कम plagiarism. तो आप जितना ज़्यादा footnotes डालोगे उतना अच्छा रहता है. Okay. So we were talking about dive into the specifics. Yeah, so I explained you basically you have to know about your law, you have to know about your facts, you have to be very clear, you have to know what your topic is. आपका वो legal context क्या है वो पूरा clear होना चाहिए. अब rape है तो उसके क्या pros हैं, क्या cons हैं, demerits, merits, सब कुछ पता होना चाहिए. Okay. Then like I said, find other articles or literature, right? Now basically this is literature review. आपको आपका literature review बिल्कुल पक्का होना चाहिए. कैसे आप कोई article लिखोगे, कैसे जहाँ पे content ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, right? उसके लिए आपको what's the difference? See, these all things will be explained in our upcoming sessions. Okay, today's session is on how to select a topic. So whatever questions you have, put it in the chat box, that I'll take at the last only. But related to the topic you should have questions. Okay. या सो आई वाज सेइंग फाइंड अदर आर्टिकल्स. तो बेसिकली ये है कि कोई भी कंटेंट हम जब लिख रहे हैं तो उसमें हमें हमारी लिखेंगे कैसे हम, राइट? वी हैव टू फाइंड आर्टिकल्स, वी हैव टू फाइंड जर्नल आर्टिकल्स. लाइक आई said yesterday also in my previous session, researchgate.net, shod ganga,
Right, these are the sites where you'll get a lot of research papers, articles, and like blog IP leaders and normal. Also there are so many blogs, law bhumi, and various other blogs, spot, wordpress and all. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि you'll get a lot of various variety of articles related to your own topic. So as I said पहले भी, reading is the basic for any legal writing. So you have to read a lot. बिना पढ़े नहीं चलेगा, right? So you have to read, you have to learn, you have to see, you have to understand the facts. So वो अगर आपको related चीजें मिल रही है, well and good. Books ले लो, कोई भी book ले लो. Okay, website name is researchgate.net and Shod Ganga. Shod Ganga is basically dissertation का एक site है. यहाँ पे thesis and dissertations बहुत सारे मिलेंगे, but you can use it as a research paper guide also. मतलब you can study for it, you can download the papers and all. वहाँ से आप अच्छे से research paper की तरह उसको पढ़ सकते हो. You can take a lot of content from there. Take as in take reference, not copy. Okay, so this is find other articles. Now identify relevant case laws, right? अब अगर आपने, can you speak slow? Okay, okay, sure. So relevant case laws मतलब basically अब मैंने रेप लिया, right? तो रेप में मेरे को पता होना चाहिए कि क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, या अभी जैसे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट? अब जैसे ये कोलकाता वाला चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेंडिंग इशू. सो यू हैव टू नो कि केस लॉज में भी इट्स नॉट दैट आप बहुत पुराने केस लॉज उठा लो. जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो तो आपको डालने ही है, बट one second, there are many cases with similar names, like same parties are going against each other in various matter. How to identify from those cases? See, that is what I'm saying ना. Research, you have to research. ये सब आपका basic research में ही आएगा. अब आप जब पढ़ रहे हो, रेप के बारे में हो गया या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको केस लॉस भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे साथ साथ, राइट? सो एंड केस लॉस मतलब you should get a good habit of रीडिंग जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको बिल्कुल वो चीज करनी पड़ेगी कि आपको ना पढ़ना पड़ेगा बहुत. एंड जजमेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल इफ दे हैव लाइक अगर आपको जुडिशरी वगैरह करना है, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, तो फिर उसमें भी आपको काफी यू हैव टू लर्न अ लॉट, राइट? यू हैव टू रीड अ लॉट. तो केस लॉज एंड ऑल, जजमेंट रीडिंग, जजमेंट राइटिंग एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीजें आपको जरूर करनी है, is to identify the relevant case laws. Okay, now right, so now the next thing is consider a topic that interests you. Okay, so basically the main point here is that कोई भी टॉपिक अगर आप ले रहे हो, तो वो पहले तो सबसे पहले वो आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए. आपको अपनी आइडियाज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग है, और वो कौन सा टॉपिक आपको कैसे समझ आएगा कि आपको कौन सा फील्ड ऑफ लॉ इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? अब आप लॉ स्कूल में हो तो आपको पता होगा कि आपको कॉर्पोरेट लॉ पसंद आ रहा है, कि आपको क्रिमिनल पसंद आ रहा है, कि आपको आईपीआर पसंद आ रहा है, कि टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कितने सारे वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ हैं. तो ये जरूरी रहता है कि यू शुड नो कि कौन सा फील्ड ऑफ लॉ इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज सी एनी पेपर यू वुड राइट एज पर योर फील्ड ओनली ना. अब सी द थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि विच एरिया ऑफ लॉ इज इंटरेस्टिंग. नाउ आई लाइक्ड आईपीआर. Okay, so because that's why I'm doing my specialization in IPR. तो मुझे IPR पसंद है, तो मेरे को IPR पे मेरे को लिखना अच्छा लगता है. या अब जैसे I have written a paper on false cases against men in rape cases, right? तो मुझे उस क्रिमिनल साइड भी पसंद है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही साइड आपको पसंद आए, राइट? ये भी हो सकता है कि आपको दो चीजें पसंद आए. आप एक वो इंटरडिसिप्लिनरी थिंग, जैसे वो मैंने आपको कल बताया था कि आप इंटरडिसिप्लिनरी थिंग भी कर सकते हो, बट टोटली डिफरेंट नहीं कर सकते. अब जैसे कल आई टोल्ड यू नो कि हम एआई रख रहे हैं और हम मैरिज रख रहे हैं, तो हम वो दोनों टॉपिक मिला के हम पेपर नहीं बना सकते. कोई सेंस नहीं बनेगा ना उस टॉपिक का. अगर आप एआई रख रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक लेना पड़ेगा जिससे कि वो थोड़ा सही लगे, इट मेक सेंस. यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके, तो बेसिक थिंग ये है कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इट शुड मीट टू वेरी डिफरेंट कंडीशंस. ओके, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है दैट इट शुड बी कॉन्साइज.
कोई भी टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं ले सकते. ओके, मतलब बड़ा टॉपिक इन द सेंस यू कांट बी लाइक 2-3 sentences का टॉपिक बन जाए. नो, should be very crisp and concise. The topic that you choose, it should not be very broad and it should not be very narrow. It should be a medium. It cannot be very broad and very narrow, right? एक medium base होना चाहिए. It cannot be one extreme and other extreme. Okay, तो basically ऐसा टॉपिक लेना चाहिए which should focus on a specific issue. कोई एक स्पेसिफिक इशू आपने उठा लिया, कोई टॉपिक आपको चाहिए, तो उस स्पेसिफिक इशू पे ही वो टॉपिक होना चाहिए. तो आपको यू हैव टू नेम दैट टॉपिक ऑल्सो इन सच अ वे that it will fulfill, and if somebody reads the title they can know acha what the content is. So aisa you have to make that topic. Okay, the second thing is that the topic should allow you to find enough sources to cite in the research stage. जैसे मैंने बोला था, कोई भी कंटेंट आप लिखते हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी अगर कहीं से उठाओगे, कहीं से कुछ चीज लोगे, तो आपको साइट करना पड़ेगा. तो सेकंड यही इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा कोई टॉपिक उठाना है जिसमें बहुत सारा कंटेंट हो, जिसमें आप लिख सकते हो अच्छे से, बहुत अच्छे से रिसर्च करके आप यू कैन राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू साइट अ लॉट. अगर आप साइट नहीं करोगे तो प्लेजरिज्म बहुत आएगा. तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको साइट करना है. ओके, now the important second point here, brainstorm your topics. Okay, so basically brainstorm, what do you mean by brainstorm, guys? What's the meaning of brainstorming? Can anybody tell me? Rethink, It should be like by yeah, heart learning. yeah. Okay, anyone more? Giving a task to brain to do more research and solve the issues in case if any. Okay, yeah, so basically brainstorming is that creative thinking, like yes, like a discussion to produce ideas. Yes, so it is like you have to brainstorm, you have to. And how will you brainstorm? आपको क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आएगा? व्हेन यू रीड अ लॉट. जब आप ज्यादा पढ़ोगे, जब आपका कंटेंट इतना है कि आप वेरियस चीजें, आप यू आर रेफरिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आप रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हो, आप डेजर्टेशंस पढ़ रहे हो, या आप ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, तो आप जो भी पढ़ोगे उसकी वजह से ओनली यू कैन ब्रेनस्टॉर्म, राइट? Method, yes, method of generating ideas, exactly. It's a group problem solving method. Yes, absolutely right. So you have to, for you to brainstorm, you need to read a lot. Again, see, everything is a cycle here. Everything comes and stops at that reading. Reading, researching, deep analysis, writing. Everything is connected like that. You have to read. You cannot skip the reading part at all. ठीक है? तो बेसिकली ये पहला तो आप समझ गए कि टॉपिक चूज करना है जो इंटरेस्ट करेगा. ठीक है, बट हाउ वुड यू डू दैट? द बेसिक बेस्ट वे टू डिटरमाइन that this topic is interesting is to do some free writing. Now free writing is, जैसे मैंने कल भी बोला था, एक आर्टिकल उठा लिया आपने, एक आर्टिकल आपने पढ़ा, then you read it properly, then you keep that article at the side, you will not look at it, then take your laptop or want to take a paper pen and start writing, start typing. जो भी आपको, आप ले लीजिए 10-15 मिनट्स रख लो आप, आपको जो भी समझ आता है उस आर्टिकल में आप वो चीज लिख लो. ओके, एंड देन यू सी दैट क्या आपका क्या जनरेशन है, व्हाट इज योर व्हाट हैव यू रिटन. That will basically have an idea. You can, that's how your mind will work, that's how you will have a more creative thinking. That is how you will write, and then you can see again the article and see whether how far you have written, उसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं. बट obviously similar content, तो you cannot copy paste. It's not like you read the article and then you learned the article and then you're writing. No, not at all. You are just basically reproducing what you learned from that article. It's your own idea of that article. Okay, also basic thing ये है कि जब आप free write करते हो ना, you should ask a number of questions. You have to ask a lot of questions about the topic, and you have to consider why that questions are important. These questions then form your research questions. Okay, and basic thing in a research paper or dissertation, anything, is the research questions. Basic, that are the issues of your topic.
अगर आपको वो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आपका पेपर क्या बात करेगा, आपका पेपर बात करेगा उन रिसर्च क्वेश्चंस पे। अगर आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो रिसर्च क्वेश्चंस आंसर कर लोगे बाय द एंड, व्हेन यू कम टू द सजेशन एंड कंक्लूजन, यू आर आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन, देन योर पेपर इज मेड. That is how a proper paper will be made. Okay, so the point here is that you will have a lot of reading. जब आप इतना कुछ पढ़ोगे ना, तो बेसिकली आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी जो जो टॉपिक्स आपको इंटरेस्ट करेगा. तो आपने पूरी एक लॉन्ग लिस्ट बना ली. फिर नाउ इस लिस्ट पे आपको देखना है कि कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पसंद है. फिर इससे आप और नैरो डाउन करोगे. फिर और नैरो डाउन करते करते, ब्रेनस्टॉर्म करते करते, इट विल कम टू वन टॉपिक विच यू वांट टू राइट ऑन. ठीक है. नाउ बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी ये दिक्कत, आई मीन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी ऐसा है दैट यू कैन टॉक टू योर प्रोफेसर्स, यू कैन टॉक टू योर क्लासमेट्स, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स. मतलब सी, ग्रुप डिस्कशंस कर लो कि कौन से टॉपिक पे करना है, वो योर फ्रेंड इज डूइंग ऑन विच टॉपिक. देन यू कैन ऑल्सो कंसल्ट प्रोफेसर्स जिन्होंने पहले ही उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप लॉ है, यू वुड हैव पीपल who have written papers or articles on that specific area. So you can talk to professors, or even if they have not written the paper, they will definitely help you, right? तो आप ऐसे you can get more ideas like this, कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप अपने प्रोफेसर से बात करो, ऐसे आपके पास मिक्स्ड ओपिनियंस आ जाएंगे. तो उस मिक्स्ड ओपिनियन से देन यू कैन हैव मोर टॉपिक्स, कि अच्छा ये टॉपिक्स है, अब ये मेरे इंटरेस्ट के हैं. फिर इसी वजह से यू कैन ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू, रिमूव some of the topics and then narrow down to one topic. Okay, now the third point is define your topics. So you want to make sure the topic is into broad or too narrow. As I said, एक middle thing होना चाहिए, या तो दो extreme नहीं होता. You can't be, it cannot be too broad, right? You can't just say rape law और पूरा, फिर आप पूरा रेप सब कुछ समझा रहे हो, नहीं, वो that becomes a very long paper. Now if you want to write a research paper, then also you should know कि आप रेप लॉ में भी क्या करोगे, क्रिटिकली एनालाइज करोगे, या फिर आप उसमें क्या डाल रहे हो, आप केस लॉ. अब जैसे व्हेन आई रोट माय पेपर वाज ऑन false cases against men. So it was basically a paper where I have defined rape and the section regarding to rape and all, and then I have also given a case study. So for me the relevant case law was Vishnu Tiwari case. If you guys would have heard about Vishnu Tiwari, तो उसमें था कि मैं उसके केस के बारे में बात कर रही थी. ठीक है, तो दैट वाज अ स्पेसिफिक केस स्टडी प्लस अ पेपर. तो दैट वाज माय एरिया. तो ऐसे आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको केस स्टडी बेस करना है कि आपको पेपर बेस करना है, या आपको मिक्स करना है. बट जो टॉपिक होगा वो बहुत नैरो नहीं हो सकता और वो बहुत ब्रॉड नहीं हो सकता. ठीक है, दैट इज अ थिंग कि आपका जो टॉपिक है, इट शुड बी परफेक्ट, अ मिडिल टॉपिक. ओके, देन yeah, sorry. ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक डिसीजन. सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चंस पूछोगे अपने आप को, तो आपके ना वो चार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. पहला होगा हु, देन व्हाट, देन व्हेन एंड देन व्हाई. Okay, so these are the four topics that you need to ask yourself. So basically you have to ask about who, what, when and why questions. पहले who में आप क्या पूछोगे, who में आप पूछोगे कि who are the information provider on this topic, right? अब जैसे journals हैं, तो that is the answer to this. Who are the information providers? Journals, journal articles. Then these sites known as Shodhganga, ResearchGate Net. So these are the people who will be providing you information. Okay, देन उसके बाद आपको पूछना है कि हु इज अफेक्टेड बाय दिस टॉपिक. अब जैसे अगर मैंने रेप लिया, हु इज अफेक्टेड बाय दिस टॉपिक, राइट? बेसिकली विमेन है, मेन है, कौन है, ट्रांसजेंडर है, हु इज द पर्सन, किसके बेसिस पे आप लिख रहे हो. ओके, सो यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस. देन द सेकंड कम्स व्हाट. सो व्हाट में ये व्हाट आर द मेजर क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक. लाइक आई सेड, रिसर्च क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतना इट विल बी गुड फॉर यू, right? Because then you will have your major questions, and you have to narrow down that also. You can have 3 or 4 questions, or maximum 5 questions, 5 research questions that will answer, and through your paper your questions need to be answered. That is important. Okay, so in this it's like, what are the major questions for this topic?
ओके, देन बेसिकली आपको ये पूछना है कि क्या कोई डिबेट है इस टॉपिक पे, जैसे न्यूज में भी है। तो अगर जैसे अभी ये रेप, ये कोलकाता वाला इंसिडेंट है, तो न्यूज में कितना चल रहा है, तो क्या इस टॉपिक पे कोई डिबेट है? ओके, देन बेसिकली और इसके सब हेडिंग्स क्या होंगे? ओके, वॉट में और भी चीजें यही आएंगी कि इसके और सब इश्यूज क्या है, इसके और व्यू पॉइंट्स क्या है, क्रिटिसिजम्स क्या है, ये सब आएगा इसमें। ओके, देन कम्स व्हेन। is when and was your topic important, sorry, when is slash was your topic important, basically जैसे मैंने बोला था contemporary issues, trending issues, that is what is important। अब अगर आज मैं लिखूंगी कोलकाता वाले केस पे, that will be trending, that is contemporary, right? but यही चीज अगर मैं पहले लिखती या after a long time I'm going to write about this topic, then it won't have that value, right? अब जैसे AI है, अगर मैंने कोविड से पहले लिखा AI का, so it did had a some, because it was developing that time। but now if you write something like a very normal common AI पे आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, तो उसका इतना क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि वो सब ने लिखा है ऑलमोस्ट। तो यू शुड थिंक समथिंग न्यू, नॉवल, ओरिजिनल जो बोलते हैं ना, तो दैट इज शुड बी देयर। you have to have something new in it, that you have to see in the when question। okay, so basically when is or was your topic important talks about the contemporary issue or the trending issue। so उसमें यही है कि आपका जो करंट ये इशू है, करंट टॉपिक है, क्या इसका कोई वैल्यू है, क्या इसका कोई बात कर रहा है, करंटली चल रहा है, राइट? देन यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट कि अब जैसे अभी जो कोलकाता वाला केस है, इसके इसके पहले जो भी रेप केसेस हुए थे उस पे आप कंपेयर कर सकते हो, निर्भया हुआ था। ओके, सो यू कैन डू दैट। आई एम टेकिंग द रेप एग्जांपल बिकॉज आई हैड रिटन अ पेपर ऑन दैट। ओके, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। यू कैन ऑब्वियसली टेक वट एवर टॉपिक यू वांट, उस पे आप देख सकते हो, ठीक है? देन द लास्ट इज व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक। सो बेसिक यही है कि यू हैव टू नो कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज करा। उसका आंसर कैसे आएगा? उसका आंसर तभी आएगा जब आपको इंटरेस्ट वाला टॉपिक उठाना है। अगर आपने कोई टॉपिक ऐसा उठाया जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, देन यू विल डेफिनेटली आंसर व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक में क्या इंटरेस्ट था आपका, राइट? ये क्यों आपने चूज करा, इसमें बेसिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सी, एनीथिंग दैट यू राइट ना, आपका मेन यही चीज है कि जो भी आप लिखोगे ना, डोंट राइट इट फॉर द सेक ऑफ इट, है ना? कभी ऐसी चीज नहीं करनी है जस्ट फॉर्मेलिटी बेसिस पे नहीं करना है। फॉर्मेलिटी बेसिस पे करना होता है तो लोग फिर दे कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको लीगल स्किल गेन करना है, आपको लीगल राइटिंग अगर करनी है तो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस इन यू, यू हैव टू हैव दैट इंटरेस्ट इन यू। कुछ भी ओवरनाइट सक्सेस किसी चीज का नहीं रहता है, राइट? लीगल राइटिंग इज नॉट वेरी टफ, बट it is one important thing is reading, writing, researching, analyzing। ये चार चीजें अगर आप करोगे ना, तभी you can do anything in life, be it legal writing and as a lawyer if you are, I mean everybody mostly are law students, so हमारे लिए it is very important कि हम पढ़ें बहुत ज्यादा और हम ट्रेंडिंग चलें। जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, हमको पता रहना बहुत जरूरी है। कल को आप किसी इवेंट में जाते हो और वहां पे आपको कोई पूछता है अबाउट द करंट ट्रेंडिंग इवेंट्स, यू शुड नो, यू शुड हैव दैट कॉन्वर्जेशनल स्किल कि आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। अगर फिर इफ यू डोंट नो अबाउट इट, यू नॉट रीडिंग अबाउट इट, देन यू विल फील लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट, दैट यू हैव टू अवॉइड। सो बेसिक थिंग इज रीडिंग, एंड रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट, होम। अपने घर से शुरू करो भाई। न्यूज़पेपर है, स्टार्ट रीडिंग थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज द बेसिक थिंग। एंड अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, यू हैव सो मेनी टेलीग्राम पे पेजेस हैं विच गिव्स यू पीडीएफ ऑफ न्यूज़पेपर्स। स्टार्ट बाय दैट। ऐसे ही आपको टॉपिक्स ऐसे ही आएंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ लीगल राइटिंग। ओके, सो बेसिकली वाई में ये है कि यू हैव टू सी ऑल द इश्यूज, ऑल द ओपिनियंस, ऑल द आंसर ऑफ व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक, व्हाट इंटरेस्ट द टॉपिक। ओके, now we go on to the next slide। okay, so basically this talks about what resources to refer to during the process। ठीक है, पहला है बुक्स और कॉमेंट्री। सी, दिस स्लाइड इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आप क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो आप
प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप कमेंट्रीज पढ़ सकते हो, कमेंट्रीज, और आप केस स्टडीज पढ़ सकते हो अगर आपको केस स्टडी लिखना है, केस ब्रीफ लिखना है। देन यू हैव लॉ रिव्यू, जर्नल रिव्यू, आर्टिकल रिव्यू, ओके। You have this told you about ResearchGate, Chodganga. Then you have statutes, rules, regulations, legislations, right? अगर आपको रेप के बारे में लिखना है तो यू शुड नो आईपीसी, बीएनएस, ये सब पता होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक लिखोगे उसको रिलेटेड बेर एक्ट, उसके रिलेटेड लेजिस्लेशन, उसके रिलेटेड स्टैट्यूट तो आपको करना है, ओके। देन है केस लॉज, ऑब्वियसली। Can you explain what exactly are commentaries? See यार, see commentaries is basically कि जो जैसे क्या होता है, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ो ना तो नीचे भी they give a proper explanations to that, right? That is also known as commentaries. So आप वो भी देख सकते हो। बेसिक यहाँ पे मेन मोटिव ये है, जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ज़्यादा it will be beneficial. Books are the best friend, okay? यू नो, इफ देर इज आई डोंट नो द प्रॉपर कोट, बट ऐसे बोलते हैं कि आपका जो पीस ऑफ माइंड आता है ना वो बुक से बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है, इफ यू कैन यू कैन मेक द बुक योर बेस्ट फ्रेंड, देन एवरीथिंग इज अमेजिंग, ओके। राइट, एग्जैक्टली। सो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। सी आई वॉज ऑलवेज, आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट यार। मैं भी वहीं रही हूँ जहाँ पे आप लोग हो। मेरे को भी नहीं पसंद आता था इतना क्या बुक पढ़ना, एंड एज अ लॉयर हमारे पास कितनी सारी वेराइट्स होती है पढ़ने को, राइट। तो ऐसा लगता है कि क्यों पढ़े इतना, क्यों ही करना है, ठीक है, ओके। बट फिर धीरे धीरे जब आप आओगे ना थर्ड फोर्थ ईयर में, आपको पता चलेगा कि लीगल राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी कोई, इफ एनीबडी इज डूइंग एनी इंटर्नशिप एंड ऑल इन कोर्ट्स एंड ऑल, यू वुड नो कि देयर इज अ बेसिक स्किल ऑफ अ लॉयर इज लीगल राइटिंग। और कितने लोग ऐसे होते हैं ना, दे गेट पेड थिंग्स लाइक दे गिव पीपल मनी एंड गेट देयर लीगल राइटिंग डन, विच इज वेरी बैड। आपको नहीं पता, दिस इज सो नॉट राइट। एज अ लॉयर आपका बेसिक स्किल है लीगल राइटिंग। आप कहीं भी कोर्ट में जाओ, आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी ना, तो वो तो आपका लीगल स्किल है नॉर्मल, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको कैसे आएगा? वो आपको पढ़ के ही आएगा। बिना पढ़े कुछ नहीं आता, बिना सीखे कुछ नहीं आएगा, right? So this is about the resources that you can refer. As I told you, researchgate.net, Shodganga, books, law review, journal articles, statute, legislation, rules, regulations, case laws. This is just, I've given you some example. बतेरे चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। गूगल सर्च करो, अच्छे से पता चल जाएगा आपको क्या कैसे करना है, ओके। एंड गूगल सर्च करोगे प्रॉपरली, आर्टिकल्स भी इतनी सारी आ जाएंगी। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक आपको करना है। अगर आपको टॉपिक पता है तो जरूर हो जाएगा, ओके। देन द नेक्स्ट, या, सो दिस इज लाइक आई टोल्ड यू, हाउ डू यू फाइंड दिस रिसोर्सेज? पहला है गूगल या नॉर्मल सर्च इंजन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि आप सर्च करो कि कैसे करना है, यू वुड जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च इट। बट सी सर्च भी है कि थोड़ा सा स्मार्ट सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू टू डू अ स्मार्ट गूगल सर्च। तो आपको पता होना चाहिए, अब जैसे रेप है तो आप क्या रेलेवेंट टॉपिक डाल सकते हो, क्या ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड्स डाल सकते हो जिससे आपका सर्च इजी हो जाए, है ना, जिससे आपको पता भी चल जाए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ साइट्स रिलेटेड टू दैट। सो इट्स नॉट दैट ABCD आपने सर्च कर लिया, नो, यू शुड बी अ लिटिल स्मार्ट एंड यू शुड नो कि आपको कौन सी चीजें कौन सा कीवर्ड्स यूज करना है जिससे इट विल बिकम ईजी, okay. So you have to put these connecting terms and these SEO जो बोलते हैं, keywords and all, okay. That about SEO it will be in my upcoming session, but अभी के लिए ये है कि you need to know, there should be a smart way of researching, okay. Then second is libraries. See, never underestimate the value of libraries, guys. Library is your bhagwan mandir, okay, temple. It's your literally the best thing that you can have right now. As a law student, everyone obviously will be going to colleges and universities, and every university have their own library, ठीक है। तो there तो you should go for regular visit, अपने लाइब्रेरी को रेगुलरली विजिट करो, वहां पे देखो। वहां पे तो प्रॉपरली सेक्शंस दिए होंगे ना अलग से, जो भी फील्ड ऑफ लॉ के रिलेटेड, तो रेलेवेंट बुक्स देखो, वहां पे देखो। एंड आपका जो लीगल डेटाबेसेस है वो देखो, ये सब आपको बिल्कुल बहुत हेल्प करेगा ना। लीगल डेटाबेस जैसे मैंने कल भी बताया था प्रीवियस सेशन में, हीन ऑनलाइन, SCC, मनुपात्रा, वेस्ट लॉ, ये सब आपके लीगल डेटाबेसेस हैं, ओके। वेस्ट लॉ है, और भी बहुत सारे हैं। देयर वाज दिस लेक्सस नेक्सस आल्सो,
ठीक है, जे स्टोर, ये सब ऐसी चीजें हैं। या टैक्समैन, या टैक्समैन इज ऑल्सो गुड, बट यू नो दीज और थिंग्स विल बी मोर बेनिफिशियल, लाइक एससीसी ऑनलाइन, ही ऑनलाइन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ लीगल डेटाबेसेस, यहाँ से यू कैन फाइंड अ, सी जे स्टोर इज वेरी फेमस फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, जे स्टोर से बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे। और ये ही ऑनलाइन, एससीसी एंड ऑल, यहाँ पे आपके जजमेंट्स, यहाँ पे आपके बेसिक केस लॉज एंड ऑल, ये सब आपको, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। ओके, तो बेसिक चीज ये है कि आपको आपका रेलेवेंट लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल डेटाबेस में आपको आपके रेलेवेंट लिटरेचर, आपके केस लॉज, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड केस लॉज है, तो वो सब में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास अभी भी एक्सेस नहीं है आपके लीगल डेटाबेसेस के, तो आप जाओ अपने, जैसे मैंने बोला था पहले भी, अपने कॉलेज में जाइए, लाइब्रेरी के पास, गो टू अ लाइब्रेरियन, ask him for your access. If he is not giving, go to your administration, but definitely ask. See guys, आप लोगों ने इतना पैसा दिया है अपने लॉ स्कूल में, राइट, तो इतना चीजें हैं, तो उस चीज को यूज करो। लाइब्रेरी इज द बेस्ट थिंग। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा ही बोला है कि भाई लाइब्रेरी, बुक्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्री भी हो, हमारा आजकल का दिक्कत ही है ना, वी हैव फोन एंड ऑल दिस, सो वेन एवर वी आर फ्री, तो हम फोन पे लगे रहते हैं, इंस्टा देख लिया, यूट्यूब देख लिया। अगर आप यूट्यूब भी देख रहे हो तो कुछ रेलेवेंट देखो, है ना, कुछ आर्टिकल के बारे में देख लो। कितने सारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, केस स्टडीज दिए होते हैं वेरियस केस लॉज पे। अगर आपको केस लॉ पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब में जाओ, सर्च करो उस केस पे, देर आर सो मेनी समरी वीडियोज ऑफ दैट। यूज ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको फोन भी यूज करना है तो रेलेवेंटली उसको, टेक्निक एकदम अच्छे से प्रैक्टिकली यूज करो, नॉट फॉर ऑल दीज इंस्टाग्राम स्क्रोल एंड रील्स एंड ऑल। उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है अभी, ठीक है। देन द लास्ट इज टॉकिंग टू लॉयर्स, प्रोफेसर्स एंड इवन फ्रेंड्स। ये आई टोल्ड यू पहले भी, जितना ज्यादा आइडिया आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है ना। एंड फॉर दीज रिसोर्सेज ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली टॉक टू लॉयर्स, प्रोफेसर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। दे माइट इवन सी प्रोफेसर्स बी योर बेस्ट फ्रेंड। मैं तो सबको बेस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ, बट सीरियसली जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, अगर आपने अच्छे से उनके साथ एक आप ड्रापो बना लो, ठीक है, और जैसे देर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। मेरे भी स्कूल में, मेरे कॉलेज में बहुत मेरे प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इन टर्म्स ऑफ लीगल राइटिंग एंड ऑल, ठीक है। तो यू शुड नो, यू शुड हैव अ नॉर्मल आइडिया कि कौन फ्रेंडली है, कौन अच्छा है और कौन नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पे डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ योर प्रोफेसर्स, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो अबाउट टॉपिक्स। एंड इवन बेटर इज you can go and even start a write a paper with them. They might also help you in that. तो आप एक पेपर लिख लो उनके साथ, वो आप you both can write a paper, you can collaborate on it and then you can get it published. That is like the best thing that you can do, but it takes time obviously. See, professors and all, they need a lot of revisions and all, so you should have a lot of patience in that. वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, but this is the best thing. Okay, so today's session was on basic thing ki how to select a topic. Now whatever questions you have, let me know on the chat box, I will answer it. That's it for today. So let me know what are the questions you have. Siddhi is saying, if you don't mind, can you explain the first point? Which point do you need? I'll explain it again. हाउ टू रीड जजमेंट बेटर एंड फास्टर। अरे यार देखो, वही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ, सब कुछ बेटर एंड फास्टर चाहिए, नहीं होता है यार बेटर एंड फास्टर, सब कुछ टाइम लगता है हर चीज में। यू हैव टू रीड जजमेंट। बेसिकली देखो, अगर आप इंडियन कानून ले लो, अगर आप इंडियन कानून को खोलोगे ना, तो अब एक नया, इफ यू वुड नोटिस, आ गया है कि वहां पे दे हैव गिवन बॉक्स देयर स्पेसिफिकली फॉर फैक्ट्स, फॉर आर्ग्यूमेंट्स, पेटिशनर आर्ग्यूमेंट, डिफेंडेंट आर्ग्यूमेंट, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। तो यू कैन स्टार्ट बाय इंडियन कानून। अगर आपको एससीसी एंड ऑल काफी टफ लग रहा है तो पहले इंडियन कानून से शुरू करो, वहां से आप रीडिंग शुरू करो, फैक्ट्स पे देखो। वो अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो पर्टिकुलर चीजें ही, reading a full judgment is very yeah, I understand, that's what I'm saying. See, but you have to start reading judgments, yeah, because see, it is very important. ऐसे नहीं होगा ना कि कहीं पे भी अगर आप जाओगे, या even for legal writing you can't have summaries for everything. Okay, तो वो जरूरी रहेगा कि you have to have an habit of reading, that you can start by Indian कानून,
उसमें जाओगे ना तो जैसे फैक्ट्स एंड ऑल का अलग से दिया होता है, लीगल पेटिशनर्स आर्ग्यूमेंट, डिफेंडेंट आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस, देन कोर्ट का रीजनिंग क्या है, सजेशन, कंक्लूजन, सब दिया होगा. तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड देन यू हैव टू रीड इट. ठीक है, अगर आपको एक बार ही में नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा. ऐसे आपको स्टार्ट करना है. सेकेंड स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट, ओके वेट लेट मी गो टू द सेकेंड स्लाइड. First point is research precedes writing. Acha, I mean, should you want me to explain it full wholly, or some specific point that you want me to just tell you? What do you want? Whole point, okay. So in the second slide, first point talks about research precedes reading. See, like I said, basic thing ये है कि पहले you have to do research, right? लिखने से पहले you should know your law properly. आपको आपका law basics proper होना चाहिए, आपके legal principles proper होने चाहिए, आपका जो भी case law पढ़ रहे हो उसके बारे में सब कुछ clear होना चाहिए. तो आपका जो research है वो बहुत ही important है. कोई भी content को लिखने के लिए पहला research ही is the basic, राइट. तो अगर वो चीज एकदम आपका प्रॉपर रहे तभी आप कुछ लिख पाओगे. तो वो चीज कैसे प्रॉपर होगी? बाय रीडिंग अ लॉट, एंड यू कैन डू रिसर्च थ्रू वेरियस, लाइक आई टोल्ड यू, द वेरियस रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज फॉर रिसर्च. बेसिक थिंग हियर इज दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ शुड बी परफेक्ट. You should know, you should not have any doubt in your understanding of the topic. तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग पूरा होना चाहिए, आपको लीगल प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको लिखना है. Sessions are very informative, ma'am, but is there any possibility to reduce the scheme to 1 week or not daily? See, that I have to talk to the legitimate team, because the problem is that, see, this is a I know that it's a lengthy session, but the thing is the topics and all are lengthy, darling. So you have to, like, it takes time to cover, na. So it can't be like, very short and all. Like, even in the feedback, there were some people who were like, can we make it to half an hour and all? But see, by ye ki half an hour mein na, it won't be covered. Everything cannot be covered. And you guys have a lot of questions also. So wo cheez thoda difficult rahega. Siddhi, is your point clear, or should I again explain? Is it fine? Yes, okay, it's clear. Okay, thank you. Aman is saying, what is he saying? Yes, ma'am, I'm able to understand it, but often I find it waste of time, as I will only quote 1 or 2 4 sentences. This is, you're saying about judgment writing, right? For the judgments, you're saying, no? See, basic thing ये है ना मैन, first you obviously have to read it. तो अब पहले पूरा पढ़ो ना, आपको पहले समझ आना चाहिए. एंड वेस्ट ऑफ टाइम तो देखो बहुत चीज़ें लगती हैं, बट यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू इट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. इफ देर आर पीपल हु आर टेकिंग इट फॉर जुडिशरी एंड ऑल, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. एंड एज अ लॉयर यू शुड डेफिनेटली नो. अब कल को कोई इफ यू गो फॉर सम सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, कैसे पता चलेगा कुछ अगर आपको जजमेंट के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं? यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट ना. सी, इट्स नॉट अबाउट कि लीगल राइटिंग में हेल्प कर रहा है या नहीं. यू हैव टू थिंक अ लिटिल फार्दर, ओके, कि आपका फ्यूचर में आपका नॉलेज, लीगल नॉलेज भी तो है, तो वो कैसे आपको इट विल हेल्प यू, वैसे सोचो. सी, यू वही बात है कि यू आर सेइंग ना दैट you will only quote 1 or 2 4 sentences. See, it's okay, even that is a start. कम से कम कहीं से तो शुरू करो. और जरूरी नहीं है that you know the full judgment. You have to know the crux of the judgment. ठीक है, पढ़ना पूरा जजमेंट है डेफिनेटली. आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, आपको पता होना चाहिए उसके इश्यूज क्या है, आपको पता होना चाहिए उसके फैक्ट्स क्या है. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. मैम may I say something? यस. जैसे ये 2 पैराग्राफ्स हो, एक पैराग्राफ वगैरह कोट कर रहा हूँ. मैंने मूड कॉम्पिटिशन्स में अपने फाइल्स सबमिट किए थे, ठीक है, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, उतना ज़्यादा फर्दर नहीं जा पाता है. वो अप्रोच फिक्स करने के लिए एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है ये फुल जजमेंट पढ़ना. एंड देन उसमें से सिर्फ जैसे आपने बोला ना कि केस का फैक्ट पता होना चाहिए एंड जजमेंट पता होना चाहिए. एंड इश्यूज. हाँ, इश्यूज, वो तो ऑब्वियसली बात, इश्यूज पता होना चाहिए. तो ये सारी चीजें, फैक्ट्स एंड इश्यूज, ये
ऊपर ऊपर से हर एक जजमेंट राइटिंग में लिखा रहता है कि इश्यूज क्या है, वो सेपरेटली लिखा रहेगा। और क्या कहते हैं, फैक्ट्स भी समझ में आ जाते हैं इजीली। हम्म बट उसके बाद जजमेंट जो दिया गया है, हम्म ठीक है, क्योंकि क्योंकि कोर्ट जो है बहुत ही लंबा जजमेंट देती है, ठीक। यस यस, तो सी उसमें उसमें। से हाँ। रेलेवेंट चीजें जो है हम्म वो निकालना और उनको कोट करना, हम्म वो तो पूरा पढ़ लिया हमने, बट जो रेलेवेंट था वो हमने निकाल लिया, बट वो उसके बाद ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया, पूरा नहीं पढ़ना चाहिए था। मे बी हम लोग थोड़ा सा अगर रेलेवेंट पढ़ लेते, कहीं से ये ऑप्शन होता तो ये अप्रोच मैं पूछना चाह रहा था कि ये किस तरीके से अप्रोच करेंगे। सी उसका बेसिक मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप इंडियन कानून में जाओगे तो वहां पे ना प्रॉपरली आपको डिफरेंट बॉक्सेस दिए रहेंगे ना, एक फैक्ट्स के लिए, इशू के लिए, कोर्ट का रीजनिंग क्या है। तो अगर आपको बेसिक उसमें भी नहीं पूरा पढ़ना है तो आप इंडियन कानून में जाके सिर्फ कोर्ट का रीजनिंग देख लो। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, अगर आप कोई केस के लिए जाओगे तो पहले आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए ना, तो आप पहले आप फैक्ट्स देख लो। फैक्ट्स देखने के बाद आप इश्यूज देख लो, फिर उसके बाद आप कोर्ट का रीजनिंग उसमें देख लो। और कोर्ट ने रीजनिंग और उसमें इतना बड़ा नहीं होगा, इट विल दे विल हैव इट प्रॉपरली कंसाइज, क्योंकि इंडियन कानून थोड़ा कंसाइज करता है। तो उसमें यू कैन सी व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट द कोर्ट हैज हेल्ड, राइट। कोर्ट का रीजनिंग क्या है और उसके बाद हेल्ड। तो ये अगर आप प्रॉपरली थोड़ा ऐसे एक दो केसेस, यू स्टार्ट टेकिंग केसेस एंड ऑल एंड स्टार्ट रीडिंग इट, इंडियन कानून से स्टार्ट करोगे तो आपको इतना हेक्टिक नहीं लगेगा। अगर आप एससीसी और इसमें जाओगे तो इसलिए बहुत लंबे जजमेंट्स होते हैं और आपको नहीं पता होता कौन सा पैराग्राफ रेलेवेंट है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए ये है कि अगर आप इंडियन कानून से शुरू करोगे देन इट विल हेल्प। ओके मैम, और एक क्वेश्चन है कि मतलब इस अप्रोच को हम लोग आर्टिकल राइटिंग में कैसे ये करेंगे। फॉर केस लॉज यू आर सेइंग, नो? हाँ, जैसे कि हाँ पूरा का पूरा फैक्ट्स भी उसमें एक्सप्लेन करना है, हाँ। फिर इश्यूज भी एंड जजमेंट भी। सी इन रिसर्च पेपर या आर्टिकल में वो डिपेंड करेगा आपके टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपके और कोई वर्ड लेंथ। हाँ भाई, सी आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल, अगर आप केस स्टडी लिख रहे हो, केस ब्रीफ लिख रहे हो, तो प्रॉपर वो जो फॉर्मेट होता है ना कि आप पहले फैक्ट्स लिखो, फिर इश्यूज लिखो, फिर एनालिसिस करो, फिर जजमेंट लिखो, तो वो सब नॉर्मल आपका जो फॉर्मेट रहता है रहेगा। बट अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसमें बस रेलेवेंट, जैसे लैंडमार्क, आपने कुछ रेप के बारे में लिखा तो आपने लैंडमार्क जजमेंट उसमें लैंडमार्क केस डाल दिया, एंड देन विद इन 2-3 लाइन्स यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कोर्ट ने क्या बोला था उसमें, व्हाट इज रेलेवेंट इन दैट केस, जो कि आपके टॉपिक में उसने कैसे हेल्प करा है, राइट। तो बस आपने वो 3-4 चीजें, लाइक 3-4 लाइन में आपने वो बता दी है। सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट द होल फैक्ट्स और द होल इशू और द होल कोर्ट रीजनिंग, दैट इज नॉट नीडेड। दैट विल बी नीडेड ओनली अगर आप केस स्टडी डाल रहे हो। अगर आप कोई केस स्टडी लिख रहे हो ना, वो तब इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके मैम, अंडरस्टूड। ओके, वेट, विक्रांत is saying which type of law books can support. यार सी फॉर जजमेंट ऑल ना मैंने कभी बुक्स रेफर नहीं करी है। आई हैव ऑलवेज रेफर्ड दिस एससीसी एंड हीन एंड मनुपात्रा एंड इंडियन कानून आई हैव ऑलवेज गॉन। तो फॉर स्टार्टिंग यू कैन ट्राई बाय इंडियन कानून, बट नॉट, आई मीन आई डोंट रेकमेंड लॉ बुक्स फॉर जजमेंट राइटिंग, बिकॉज मैंने खुद जजमेंट राइटिंग लॉ बुक से नहीं करा है। सो आई कैन नॉट रिकमेंड यू अगर मैंने खुद नहीं पढ़ा है। ओके, on Indian कानून can we search any case? Yes, you can search case, वहाँ पे साइड में होगा। वरना आप ना गूगल सर्च करोगे तो गूगल सर्च में जो आप केस डालोगे ना उसके साइड में आप इंडियन कानून लिख दो, तो केस इंडियन कानून वाला उसमें they'll give the link to that, so you can go for that. Is it possible to change the timing of the session? uh no, I don't think so that's possible. See, I'm a LLM student, so मेरा भी एक schedule रहता है। आज तो फिर भी we had Independence Day, so it was holiday, but I have my own schedule, so I am free only at 7 to 8 o'clock. Really sorry for that, but I will try to change the timing. But it, my schedule is like that. I have my classes and all, so that's the problem. Ma'am, I want to ask, is this same approach works for writing for a book chapter? Which approach? For you talking about case law, or what are you talking about, Mira? Mira, can you elaborate your question? Which approach are you talking about?
Okay, wait, I'll move on to the next. If you share a sample, yes, I will see. I have given it to the Legitimate India's the team. I have given my article. There is some issue with the website as of now. By tomorrow, you will you can view my article also. See, if you want, मैंने which I was talking about the false rape cases ना, तो मैंने वो research paper लिखा था जिसको मैंने एक book में convert किया था. So if you want the link for that, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, बट दैट्स अ Amazon बुक. सो आई डोंट नो वो कितना आपको, मतलब दैट यू हैव टू बाय. इट इज फॉर आई गेस 150 रुपीज और समथिंग. तो अगर इफ यू वांट दैट यू कैन बाय. आई कैन शेयर यू द लिंक. वेट, आई जस्ट शेयर. See, this is the link for my book. That's an Amazon book. So if you guys want, you can take it. Um, okay, the next question is, there is also yes, there is a conclusion also in Indian Kanun. Can you say how to research journal, case law, textbook without any legal database? अच्छा, सी, इट्स ओके इफ यू डोंट हैव लीगल डेटाबेस, कोई दिक्कत नहीं है. जर्नल्स, जैसे मैंने बोला था ना, रिसर्च गेट इज अ फ्री साइट, शोध गंगा इज अ फ्री साइट. ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. अदरवाइज बहुत सारी ना जर्नल्स होती है, एनएलयू की जो जर्नल्स हैं सारे फ्री हैं. ओके, देन अगर आप, मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि आप गूगल करोगे तो यू विल गेट अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ स्कोपस एंड यूजीसी इंडेक्स जर्नल्स. तो उसमें यू कैन टाइप विच एवर फील्ड यू वांट, तो आपको वो जर्नल्स बता देंगे. तो वहाँ पे यू कैन गो एंड गो ऑन दी वेबसाइट एंड लुक फॉर मोर रिलेटेड आर्टिकल्स एंड ऑल. तो वहाँ से आप देख सकते हो. सो यू हैव अ लॉट ऑफ जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स एंड ऑल. So it is not a problem. You will have a problem in obviously case laws because SEC and all are paid subscriptions and very expensive. But you can, like I said, you can use Indian Kanun. You can use blog IP leaders, and even Locktopus and all publishes case laws and stuff. तो वो भी देख सकते हो. Ma'am, joining course, is it helpful? Like merger and acquisition, I'm kind of interested in it. Is it worth to invest money and time? Definitely, that depends on the brand, and like which company course are you enrolling in. You have to see all the reviews and all. जैसे वो सब अगर आप देखोगे तो definitely it will be interesting. I mean, it will be worthy. Can you share the PDF that you told about yesterday? Yeah, the